یاد ہے ایک دفعہ ابو بحالت گھر آئے, مجبوری نہیں ایک دفعہ ابو گھر آئے, انہوں نے کہا میں, امی نہیں تھی شاید, اور امی نے ابو نے کہا میں آج تم لوگوں کو بہت زبردست چیز کھلاتا ہوں. اور کیا زبردست چیز, نے کہا بس اب میں ایک بناؤں گا. ہم چھوٹے تھے اس وقت, تو ابو نے چینی والا پراٹھا بنایا کہ میٹھا پراٹھا میں بنا کے کھلاؤں گا. تو ہم نے کہا ابو یہ تو امی ہمیں ہر دوسرے تو یہ مجھے ایک یاد ہے کہ میٹھا پراٹھا, وہ میٹھا پراٹھا بھی 2 طرح کا بنتا ہے نا. ایک تو وہ چینی کے 2 پیڑے لے کے آٹے کے چینی اس میں اندر ڈال دیتے ہیں, تو وہ تو سب سے آسان طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ چینی اس میں گوندتے بیچ میں ڈالتے. تو ہماری والدہ جو تھی وہ تو گوند کے بناتی تھی, لیکن آپ نے ہمیں بیچ میں ڈال کے بنا کے دیا تھا. عام لوگ جو ہیں اس کو بیچ میں ڈال کے بنا دیتے ہیں. میٹھا پراٹھا مجھے یاد ہے میری یادداشت میں کہ بنا کر تو دیا نا, کھلایا تو صحیح. اصل بات یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے شیئر کریں. یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں, اور اب تو مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ یعنی اچھے خاصے جو یعنی گھرانے ہیں ان کے ہاں بھی اب مٹن بہت کم پکتا ہے, اور گوشت بہت مہنگا ہو گیا. تو بہت مہنگا ہو, تو جتنا ہو سکے ایک لوگوں کو اس میں شیئر کریں, ان میں شریک کریں اپنے کھانوں میں, اور تاکہ خوشیاں بانٹیں. یہ بھی تو بنیادی بات ہے نا, بنیادی بات سارا کچھ خود ہی تو نہیں کھا لینا. بالکل یہ بات. اور بچوں میں ویسے مٹن کا اب ذوق بھی کم ہو گیا, وہ زیادہ چکن پہ. ہمارے بچے جو ہیں اب وہ بھی چکن زدہ ہو چکے ہیں. ہاں بالکل. وہ فاسٹ فوڈ کی وجہ سے. فاسٹ فوڈ ذرا ریڈیلی اویلیبل ہوتا ہے, بچے جو ہیں وہ باہر سے کھانے کے عادی ہو کر آہستہ آہستہ وہ اس چکن کی طرف وہ ان کی مرغوب غذا بن جاتی ہے, روٹین بن جاتی ہے. پلاؤ یا اس طرح کی چیزیں تو ابھی بھی رغبت سے کھائی جاتی ہیں, ابھی بھی بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ بنے تو ہم اس کو کھا لیں. لیکن جو ہمارا فوکس جس طرح مٹن پہ ہوتا ہے نا, جی وہ ہماری پریفرنس اس کی ہوتی ہے, وہ بچوں کی نہیں ہے. وہ اس طرح کی نہیں. اب آنے والی نسل ہمارے حد تک شاید, یا شاید ہم سے کچھ 1-2 نسل بعد تک بھی تھا, لیکن اب جو بالکل نوجوان جس کو ہم جن زی کہتے ہیں, وہ کوئی خاص میرا خیال ہے مٹن کی طرف وہ نہیں, کوئی دلچسپی نہیں ظاہر کرتی ہے. نہیں کیا ہے اب وہ جب ہم جاتے ہیں نا اپر مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کے معاملات اور ہیں نا, تو پہلی بار مڈل کلاس کے اور ہیں جب وہ پیکنگ کرتے ہیں نا, اس کے پورے ہفتے کے کھانے ہم دیتے ہیں, اور 4-5 بندوں کا کھانے کی ہوتا ہے تاکہ وہ شیئر کر لیں. ہاں جی. تو وہ پورے ہم فریز کرتے ہیں, منڈے کو بناتے ہیں, فریز کرتے ہیں. تو اس کے اوپر وہ کیا لکھتے ہیں, پہلے تو ہوتا ہے گوبھی کو, یہاں پہ ہوتا ہے مٹن گوبھی. یعنی کہ یہ اس کو رجسٹر کرانا ہوتا ہے کہ یہ بیف نہیں ہے, ہاں مٹن ہے. تو یہ بس اس طرح کی کہ مٹن بھنڈی, تو اس میں جا کے تاکہ رجسٹر, تو وہ اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بات ہے کہ مٹن جو ہے نا اپنے طور پہ ایک اس کا ایک اپنا کلچر بن گیا, یا اس کی ایک اپنی شان بن گئی, آن شان ہے, بان جو بھی ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ ویسے مجھے پتا ہے کہ آپ تینوں میں دوستی بھی بہت گہری ہے, تو کچھ یاد پڑتا ہے کہ کتنی پرانی ہے, کب آپ کی دوستی شروع ہوئی, کہاں سے آغاز ہوا اور کہاں تک پہنچے, کچھ سفر اس کا. اچھا میں اس کا آپ کی دوستی کا سفر, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ تینوں بہت قریبی دوست ہیں. اب دوستی تو مطلب پتہ نہیں, اب تو یاد ہی نہیں ہے کہ کب سے شروع ہوئی ہے. لگتا ہے کہ جب پیدا ہونے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کچھ ہوش والا ہے, تو ہمارے حساب پہ شامی صاحب سوار تھے, ہم کچھ بڑے ہوئے, ہم ان کے حساب پہ سوار ہو گئے. ہم نے کہا جی آپ نے ہمارے لیکن بلال صاحب کو یاد ہے, بلال صاحب کچھ نہ کچھ بتانا. بلال صاحب سے تو دوستی اس وقت ہوئی جب بھٹو صاحب کے دور میں یہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ منتخب ہوئے اسٹوڈنٹس یونین کے. اس وقت سے پھر ان سے, اور یہ ایک پنجاب اسٹوڈنٹس کونسل بنی تھی, جی میں اس کے چیئرمین تھے, آپ سیکرٹری جنرل, لاہور اسٹوڈنٹس کونسل کا چیئرمین تھا, اور پنجاب اسٹوڈنٹس کونسل کا سیکرٹری جنرل, جاوید ہاشمی اس کے چیئرمین تھے. تو یہ بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک تھی, اس میں یہ پیش تھے, اور گرفتار بھی ہوئے جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ, یہ بھی گرفتار ہوئے. اور اس میں جو آپ کا کیا تھا جی, وہ CIA چونا منڈی, جی, اور یہ جب گرفتار ہوئے ان کا سراغ نہیں مل رہا تھا, جاوید ہاشمی صاحب کا بھی, ان کا بھی, اور جو لوگ ان کے ساتھ اور تھے, تو ان کا سراغ نہیں مل رہا تھا کہ کہاں ہے. تو پھر میں نے ریٹ دائر کی ہائی کورٹ میں. آپ نے جاوید ہاشمی صاحب کے لیے کی تھی یا بلال صاحب کے لیے؟ سب کے لیے کی. اور پھر مجھے ہائی کورٹ نے کہا, کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی, خبر نہیں مل رہی تھی, تو پھر ہائی کورٹ نے مجھے کہا کہ آپ جا کے ملیں. حکومت کو حکم دیا کہ ان کو ملائیں,
फिर मैं गया, इनसे मिला वहाँ जाके, कहाँ पे थे ये? चूना मंडी में। चूना मंडी, ये खाना वाना भी लेके आए थे, फ्राइड फिश मुझे अभी तक याद है। अच्छा, अब वो उसके बाद फिर मैंने एफिडेविट दिया। अब एफिडेविट मौलाना मौदूदी ने मुझे कहा कि एफिडेविट मुझे दिखा लीजिएगा। मैंने लिख के उनको दिखाया एफिडेविट। अब मैंने एफिडेविट वैसे ही लिखा जैसे मजमून लिखा जाता है। उन्होंने कहा भाई एफिडेविट ऐसे नहीं लिखा जाता, ये पॉइंट वाइज लिखा जाता है। आपने ये तो मजमून लिख दिया है, दोबारा लिखे इसको। फिर मैंने वो दोबारा लिखा, एक एक नुक्ता, इतने बजे वहाँ गया, फिर उनसे ये बात हुई, फिर तीसरी नुक्तावाद। तो वो फिर उन्होंने देखा, चेक किया, फिर मैंने हाई कोर्ट में सबमिट किया। फिर इन लोगों को फिर बुलाया गया अदालत में, तो वहाँ से इनकी दोस्ती शुरू हुई। फिर ये चले गए रियाज में और वहाँ जॉब करते रहे। मुलाकातें रही आपसे जब आते थे? यहाँ तो रही, मतलब वहाँ फिर चले गए ना, वहाँ भी फिर उन्होंने वहाँ से लोगों को यहाँ से बुलाते थे, उनकी तकरीरें कराते थे उधर रियाज में। वो पूरा शौक एक दफा पैदा हो जाए। इनका क्या स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो चस्का लग गया था, पाकिस्तान ग्रुप, पाकिस्तान कल्चरल ग्रुप, उसमें भी बड़ा लतीफ़ा हुआ कि सजाद अली शाह साहब को भी बुलाया। मुझे कहा जी उनसे ज़रा कहें कि वो आ जाएं। तो मैंने उनसे कहा कि आप, उन्होंने कहा अच्छा आऊँगा। मैंने भी जाना था। अब वो मैं पहले चला गया अमेरिका, और वहाँ से वीज़ा नहीं लग रहा था यहाँ सऊदी अरब का, तो मुझे फिर वापस आना पड़ा। मैं वहाँ पहुँच ना सका, वो अकेले पहुँच गए। तो अकेले पहुँचे तो पीछे से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों का इजलास हो गया। वो भागे वहाँ से, और उन्होंने कहा कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उनकी एक्टिंग खत्म हो गई कराची में। उसके बाद वो कहने लगा ये मुजीब शामी जो है, इसने मिलके इनके साथ ये साजिश की है, मुझे वहाँ भिजवाया है ताकि ये मीटिंग में पीछे से बगावत हो जाए, मीटिंग हो जाए। बड़ी कहानी दिलचस्प है। न्याय साहब स्टूडेंट लीडर रहे, फिर डैट पर आई। फिर उसके अंदर इनके साथ हमें भी शरीक कर लिया, बड़े दौरे किए मुल्क के अंदर भी बाहर भी। और नियाजी साहब जो हैं, तो उनसे तो मुझे लगता है नियाजी साहब और बचपन की दोस्ती। नहीं, असल में शामी साहब के साथ जब ये कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे ना। अच्छा, मैं यही कहने लगा था, वो भी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लीडर थे, बिलाल साहब भी स्टूडेंट लीडर थे, आप भी साहिवाल स्टूडेंट लीडर। नहीं, मैं तो पुरानी बात हो गई ना, वो तो अयूब खां के दौर की बात। देखो ना, हमारा ऐसा शामी साहब का जब कुछ पढ़े हुए, मैं 69 में जब मैट्रिक में था, तो जिंदगी शुरू हो चुका था शामी साहब। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये पता है कि पहला शुमारा भी ज़िंदगी का मुझे मिल गया था मियांवाली में। और वो हमारे खान जमान खान बेचारे, वो एक हमारे शामी साहब उनको जानते हैं, मियांवाली के थे, तो उनका एक अखबार अज़ान हक भी शामी साहब ने इस्तेमाल में किया बात जब दिल्ली के पाबंदी। तो शामी साहब और अल्ताफ़ साहब कुरैशी साहब और शामी साहब, इनको हमने बिल्कुल एक, आप देखें ना, आप 71 के अंदर मैंने FSC की और फिर 73 के अंदर BSc की। तो इस दौरान में, और मैं 73 के अंदर यूनिवर्सिटी का कायदा यूनिवर्सिटी आ गया, तो वो ये था उसमें पैदा हुआ। उसमें जो ये जो थे ना शामी साहब वगैरह का नाम, तो ये ऑलरेडी चमक से सितारे थे, बहुत बड़ा नाम था, बहुत बड़ा नाम था। आप लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया है। आप तो फिर बाहर चले गए ना पढ़ने के लिए? या फिर मैं 79 बाहर चला गया, लेकिन उसके बाद फिर जरा कुछ आया जब लिया, तो फिर चले गए, शनासाई हुई, फिर ऐसा फिर अमेरिका जाने से पहले 79 में दोस्ती शामी साहब से पक्की मैं करके दोस्ती पक्की करके बहुत पक्की थी, लेकिन मुलाकातें तो फिर उस वक्त शुरू हुई ना जब ये वापस आए। हुआ ये, जो उस जमाने में ये जो ट्रांसजेंडर होता था ना, ये इसकी बड़ी धूम थी। वो जो भी बाहर आता सऊदी अरब से, वो ट्रांसिस्टर लेके आता था, और ट्रांसिस्टर ही एक जमाने में जैसे आप आईफोन है आज का। तो मेरे लिए ये, मैंने देखा ट्रांसिस्टर लेके आए सऊदी अरब से, सोनी का वो उस वक्त का ब्रांड था, सोनी भी बहुत बड़ा। शामी साहब से दोस्ती का पूछा ना, तो हमारी दोस्ती इतनी पुरानी है कि जब शामी साहब की शादी हुई तो उस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे याद है कि हम शामी साहब के वलीमे में साहिवाल
गए थे आप उनकी शिरकत शादी के में लिए। शरीक थे? जी शरीक थे और आप तो होंगे ही। नहीं, मैं उस वक्त अब अमेरिका में पाकिस्तान में यहाँ नहीं पे थे। थे। मुझे ये हमें खबरों में पता चलता था कि शामी साहब की शादी हो गई है, खबरें पता चलता था कि शामी साहब का एक्सीडेंट हो गया जावेद हाशमी के हाँ, साथ। वो एक्सीडेंट बहुत असल में एक हुआ था। ये बाहर रहे बहुत अरसा, बहुत अरसा। और ये पहले पढ़ाई के लिए, फिर सऊदी अरब में जॉब करते रहे। एक्सीडेंट तो अबू का वहाँ है। अहमद मतलब लाल साहब की और आपकी दोस्ती मैं लाहौर में जनरल ज़ियाउल हक के दौर में वापस आए आप? नहीं, वो दरमियान में मतलब गया 79 में, दौर में उन्हीं में, लेकिन मैं मियाँ वाली से इस्लामाबाद गया, ये लाहौर के सारे लोग थे। तो लेकिन ताल्लुक हमारा इसलिए था कि सारे एक जो है पीर खाना एक ही था सबका, अच्छा, नजरियाती तौर पर। नजरियाती तौर पे। बल्कि मेरा वैसे ख्याल बड़ी है तो जल्दी क्लिक कर देगा, आतेगा फंसेगा। नियाजी साहब जो हैं ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर के बाद आए हैं वापस, जी हाँ, लाहौर। सऊदी अरब से जी हाँ। लाहौर सऊदी आए अरब थे। सऊदी अरब से और ये क्योंकि ये प्रेसिडेंट थे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के, जी, जी। तो जनरल ज़ियाउल हक के मशीरों में भी शुमार होते थे। हाँ, वो इनसे मशावरत भी करते आपकी रहते वहाँ दोस्ती थी, वहाँ सऊदी अरब में आप इकट्ठे रहे, यानी आपस में राब्ते में थे? बिलाल साहब, हाँ, राब्ता वहाँ तो पे था, लेकिन ये जद्दा में थे। थे। मैं- जद्दा में थे, ये रियाज में थे। और सब अच्छा, में ट्रैवल मुश्किल होता था। आप तो कॉमन शायद लोग- हाँ लगता जी, है सब तो- अबू थे बीच में। नजरियात थे वो। कदर सारे मुश्तरक किए थे। नजरियात थे। नजरियात मतलब ऐसा समझे कि सारे मतलब ये है कि हमारे नजरियात यकसा थे, हम यानी एक तरह सोचते थे। अब शामी साहब नजरियात एक की लम्हा बात करते हैं तो मैं मेरे बताऊं दिमाग आपको में कि मैं पहले यूनिवर्सिटी में टेस्ट देने के लिए आया 73 के अंदर, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा टेस्ट और बड़ा एग्जाम और फिर इंटरव्यू होता रहा। तो मेरे एक बहनोई थे, अल्लाह ताला गनी के रहमत के, फौज में थे, पति में से कैप्टन थे, मेजर थे। तो मुझे एक टेस्ट वो दिलाने के लिए लाए। वो इस्लामाबाद में ISI में थे, अच्छा, और तो कर्नल खुर्शीद। तो वो जब आए तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये तुम्हें टेस्ट लाने के लिए बड़ा दुरुस्त इंतखाब। अच्छा, वो उसके बाद मुझे कहते हैं कि मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, यहाँ सिल्वर गिल रेस्टोरेंट है पिंडी में। टेस्ट का क्या हुआ? नो, टेस्ट में पास हो गए। वो तो होना ही था। मैं कायदे यूनिवर्सिटी के फिर अंदर आपने- जो बिलाल साहब ने वो कहा। बड़ा कंपटीशन होता था, कराची से लेके उस तक हाँ, कायदे 14-15 बंदे रखते थे। कायदे यूनिवर्सिटी बहुत हाई क्वालिटी। मेरे वैसे करियर थ्रू आउट फर्स्ट हुई है ना, बहुत डिस्टिंक्शन के साथ कई सब्जेक्ट में मेरी। तो वो मुझे लेकर कहते सिल्वर गिर। मैं सिल्वर गिर में पहुंचा तो वहाँ पे मुझे याद है उन्होंने ऑर्डर जो भी किया, कहते हैं इनका एक चिकन ऑमलेट बड़ा अच्छा होता है, तो वो हमने ऑर्डर किया। तो मुझे कहते हैं पुणे में पता है कौन बैठे हैं, मैं कौन बैठे हैं, हालांकि वो इस फील्ड के नहीं थे, मेरी ये फील्ड थी उस वक्त में। मैं आल तो अभी यूनिवर्सिटी में आज जाती, वो 10 दिन बाद में जनरल सेक्रेटरी बन गया, साल बाद में प्रेसिडेंट बन गया। मैंने कौन है, कहते हैं ये इसका डिटेल था, आपसे कोई सब बैठे। मैं तो वही मबहूत हो गया। मैंने तो उनको कि वो मुझे यकीन आ कि अल्ताफ वही सब मेरे सामने बैठे। मैं फिर बड़ा गया करीब जाके, तो मैंने कहा जी मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। तो अल्ताफ साहब का ये मिजाज था, लेकिन मुझे समझे तो उन्होंने बड़े ही एक जिसको कहना जी लगा जी कि ये सर्द महरी के साथ मुझे हाथ मिलाया। तो मुझे हालांकि वो उनका स्टाइल विचारों का ये कि बड़े सॉफ्ट बड़े थे, शफीक और वो थे भी थोड़ा सा अल्बिनस थे। तो उन्होंने मेरे ये तो इसी तरीके से मैं वहाँ से आया, यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिक और 74 में पहली दफ़ा आया। तो वहाँ पे हम जमीयत का दफ्तर सामने था, जमीयत में थे, तो पता चला जी कि शामी साहब आए हुए असर की नमाज़ पढ़ने के लिए। अच्छा, तो हम शामी साहब को देखने के लिए आए। अच्छा, मैं उसे जनरल सेक्रेटरी बन चुका था, लेकिन शामी साहब को देखने का फिर नमाज़ पढ़ी, फिर बताया जी शामी साहब को मिलते हैं। और शामी साहब नमाज़ पढ़ी, इनके साथ सजाद मीर साहब थे, एक बाद और बंदा था। तो ये नमाज़ पढ़ के कोई काम होगा, तो सारे वो जमीयत के बच्चे जितने हमारे स्टूडेंट थे शामी साहब आए हुए। तो ये वो, लेकिन क्राइसिस ये था कि ये हमें सिर्फ दोस्तियाँ जो थी ना, हमें सिर्फ एक दफ़ा मुलाकात की जरूरत होती थी, क्योंकि उसमें ये बैकग्राउंड चल रहा होता था और मतलब जानते थे एक दूसरे को। बस ये तो ना जानते, लेकिन हम लोग जानते थे। सारे जानते थे ना इस तरह। और फिर उसके बाद इंटरेक्शन होते रहते, तो बहुत सारे लोग, कई मुझे याद है कि एक हमारे दोस्तों की डेथ हो गई है, तारिक बाजवा। वो मुझे पहली दफ़ा ज़िंदगी में 87 में सऊदी अरब मिले, 88 में। और किसी के वहाँ पे कौंसल जनरल के घर में ठहरे हुए थे, तो कौंसल जनरल में खाने बुलाया, तो वहाँ पे उन्होंने हाथ मिलाया तारिक बाजवा। मैंने हाथ छोड़ा नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे को 73 का जानते थे। मुलाकात हमारी होगी 87 के अंदर, वो हैरान होते थे। तो ये जो नजरियाती आप लोगों का दादा, ये जो हमारी कॉमरेडशिप थी ना,
हाँ, वो उसका एक अपना ये bond होता था दोस्ती एक की खास जो है ना तरह का। उसकी जो और आप वसी नेटवर्क था। क्योंकि पूरा हमने तो network। जब से होश संभाला शायद इकट्ठे ही देखा। इनको इससे मेरी पहली मुलाकात हुई थी 74 के अंदर। यहाँ पे मूवमेंट चली हुई थी पूरे पाकिस्तान में रसूल में, ये जो कि आप अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने की। तो मैं कॉलेज रोड पे जमात इस्लामी का ऑफिस था, तो वहाँ पे मैं गया तो उन्होंने कहा जी वो अहमद बिलाल साहब आए हुए हैं, जी उसी के प्रेसिडेंट है। और तो मैं जाके मिला तो खैर मेरा तारुफ हुआ, तो ये इन्होंने पता चला कि ये यहाँ से कोई मुजफ्फराबाद जा रहे हैं पता नहीं किसी मिशन में, याद है? मिशन था बिल्कुल, मुझे अभी तक याद है। तो ये पहला टाकरा था, लेकिन चूंकि बैकग्राउंड चल रहा था ना तो मुझसे बस मिलते गए। आपने अभी थोड़ी देर पहले दाव साहब का जिक्र किया, उनकी अभी ज़ाहिर है हाल ही में उनकी वफ़ात हुई। मैंने जितने कॉलम उनके बाद उनके बारे में पढ़े लोगों के, और तो उसमें मैंने एक बात पढ़ी है जिसका जवाब अगर हमें हो कि हर एक ने लिखा उनकी तारीफें तो हैं, लेकिन साथ एक लाइन ये ज़रूर होती है कि उनके नज़रियात से आप जो मर्जी इख्तलाफ कर लें। तो ये ऐसा एक इम्प्रेशन क्यों है कि मतलब उनके ऐसे नज़रियात कौन से हैं कि जिनसे इख्तलाफ जो है वो इस हद तक है? क्योंकि ये बहुत से लोगों ने के तौर पे अपने लिखा जा रहा है कॉलम्स कि में इख्तलाफ जिक्र किया किया जा हुआ है। सकता है। नजरियात में तो देखें ना ऐसा होता है ना कि भुट्टो साहब से मुखालफत रही, जनरल ज़ियाउल हक के करीब रहे, तो इस लिहाज से कई लोग ऐसे हैं जो जनरल ज़ियाउल हक को नापसंद करते हैं, कई ऐसे हैं जो भुट्टो साहब को पसंद करते हैं। तो फिर वहाँ उनका ख्यालात का टकराव तो पैदा होता है ना, तो उससे कतई नज़र के किसी के ख्यालात लेकिन क्या उस है, वक्त के हालात और वाक़यात के हिसाब उनका हर एक का अपना रोल है ना, तो उन्होंने अपना एक रोल अदा किया। अगर कोई इनसे इख्तलाफ करता है तो अपने इख्तलाफ कर सकता है, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने जो दयानतदारी से समझा वो लिखा, उसकी कॉस्ट भी अदा की। उनकी कन्विक्शन थी उसके तो उस ऊपर, और वो जमाने फिर में एक उसको पोलराइजेशन जो थी वो राइट और लेफ्ट की थी, इतनी ही थी नहीं, जितनी लेकिन अब है। मैं इसको एक तकरीबन और- इसी लेवल की थी। मैं इसको एक और चीज़ तरीके से भी लेता हूँ कि ये चूँकि एंड ऑफ द डे तो वो शिकाबंद किस्म की तईसे निगार है, शामी साहब हो गए, अल्ताफ साहब कोई साहब, दानिशमंदी तो यही होती है ना आपकी हिकमत की, आप जाके जो लोग बताते हैं जायसे निकालते हैं, तो ये लोग भी यही करते हैं कि हालात और वाक़यात को देख के और अपनी अक्ल को फहम के क्या होगा। वक्त तो साबित इसके करता है। अंदर गुंजाइश होती है कि मेरे और शामी साहब की तजिया ना मिले, और उसके अंदर वो कि ये हो जाता है कभी भी न्याय साहब का तो वो जो फैक्ट्स राय वगैरह में तो ये लोग इस एंगल से लिखते होंगे कि भाई कई दफ़ा हम उनके तजिए से बाज़ लोग जो आम चीज़ है। नहीं, शामिल साहब ये नजरियात की बात आपने कह दी, हमने 2-3 दफा लेकिन वो नजरियात बहुत और बड़े नजरिए आदमी की थे बात सर, की। बहुत बड़े आज की नस्ल तो इससे नबल्द है, यानी उसको शायद ये नहीं पता नजरिया क्या है, नजरियात क्या है। ये जो वो चीज़ ही बिल्कुल वो जो राइट लेफ्ट की एक थी, वो अब तो अब नजर वो नहीं आती। पॉलिटिकली जो एक पोलराइजेशन है उसके अंदर नजरिया कहीं एग्जिस्ट करता है, आपको लगता है कि कोई नजरिया है? जाहिर है कि वो दौर और था जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, तो उसके बाद वो फिर उस तरह नज़रियाती कशमकश भी ख़त्म हो गई। तो एक कम्युनिज़म जो है वो एक नज़रिए के तौर पर, यानी एक मौसर नज़रिए के तौर पर मौजूद नहीं रहा। और फिर चाइना ने ख़ुद उससे इनहराफ कर लिया कि उनके यहाँ भी एक तब्दीली थोड़ी सी वो तब्दीली आ गई, इकोनॉमी का मसला यानी बदल गया, तो बहुत कुछ तब्दीली हो गई। तो असल लेकिन बात ये थी कि हमारे यहाँ जो पोलराइजेशन थी और राइट की या लेफ्ट की कह लीजिए, या भुट्टो एंटी भुट्टो कह लीजिए, या मुजीब एंटी मुजीब कह लीजिए, तो अब वो पोलराइजेशन बाद में फिर यानी नवाज शरीफ और बेनज़ीर के दरमियान हुई, अब इमरान खान और दूसरों के दरमियान है। तो यानी किसी न किसी तौर हम यानी एक डिवीजन में, लेकिन वो वहाँ पर नज़रिए का अमल दखल मौजूद था, नज़रियाती तौर पर लोग साथ। आपको लगता है जो आज पोलराइजेशन है इसके अंदर कहीं नज़रिया एग्जिस्ट करता है? नहीं, असल में वो नज़रिया भी होता है, फिर सियासी ज़रूरतें भी होती हैं, सियासी इख्तलाफात भी और होती हैं, शख्सियात के साथ आपकी अटैचमेंट भी होती है। लेकिन नज़रियात थे, आपकी बात दुरुस्त है हमारे ज़माने में, क्योंकि देखिए एक तस्वर था जो मौलाना मौदूदी ने, जिसे बाद में लोग पॉलिटिकल इस्लाम भी कहते हैं कि इस्लाम एक दीन है, मुकम्मल निज़ाम है, उसके ऊपर एक उस्तवार की हुई तहरीक थी और एक लोगों का एक वसी तादाद उसके साथ एसोसिएटेड थी। और उसी ज़माने में जब भुट्टो साहब का फिर अरूज शुरू हुआ तो भुट्टो साहब ने तो सोशलिज्म के नाम से शोहरत पाई थी, इस्लामी सोशलिज्म कहते थे,
لیکن سوشلزم کے نام پہ. تو وہ لیفٹ کو ریپرزینٹ کرنے والی شخصیت, اور مودودی صاحب اور ان کے ساتھ جو باقی لوگ تھے وہ رائٹ کو ریپرزینٹ. تو ایک لحاظ سے وہ نظریات تھے, لیکن اب یہ نظریات کم ہیں اور شخصیات کے ساتھ محبت اور الفت اور اٹیچمنٹ وہ زیادہ ہے. تو یہ فرق ہو گیا تھوڑا سا. آپ کا کیا اس بارے میں رائے ہے؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چاہے لیفٹ تھے یا جمعیت میں تھے, تو ان دونوں میں ایک چیز کامن تھی, اور وہ تو آئیڈیلزم. میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی لیفٹ کا بندہ لیفٹ کی جماعت میں سے کیا کہ وہاں پریزیڈنٹ بن جائے گا. وہاں پی ایس وغیرہ اور چیزیں, لیکن جو ہارڈ کو لیفٹ ہے میرا ان سے واسطہ پڑتا رہا. نہ جمعیت میں یہ تھا کہ جی آپ نے کوئی پریزیڈنٹ بننا ہے, یہ بننا ہے. سیلف لیس سی چیز ہوتی ہے. وہ نظریہ جو ہوتا ہے نا, جیسے بلال صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کا جو نظریاتی طور پہ آپ کو پرسنل ویسٹ انٹرسٹ آپ کا نہیں ہوتا. سیاسی جماعت میں اگر خواجہ آصف صاحب ہیں یا اسد کیسر صاحب ہیں یا پیپلز پارٹی کا کچھ سیاست کر رہے ہیں, تو وہ یا شامل قریشی صاحب ہیں, تو وہ سیاست اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, عمران خان کے لیے, نواز شریف کے لیے نہیں کر رہے. لیکن ان کی سیاست کے لیے ضروری ہے شامل قریشی کے لیے کہ عمران خان صاحب سے وہ ایک اس کی سیاست, ان کی جو ساتھ رہے, جو پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی ہے نا, اس کو فائدہ اٹھائے. یہ کانسیپٹ وہاں نہیں ہے, یہ نظریاتی سیاست ہے. تو چنانچہ جو ہوا بات یہ کہ ایک بڑے عجیب و غریب قسم آئیڈیلزم تھا. جو ہارڈ کور لیفٹ تھے, کمیونسٹ تھے, یقین جانو کہ اتنے اخلاص کے ساتھ وابستہ تھے کہ سرخ انقلاب آئے گا, طبقاتی جو کشمکش ہے نظام ہے ختم ہوگا, اور لوگ جنتا راج کرے گی, ہر آدمی برابر. سرخ ہے. اور ہم کہتے تھے, جیسے بلال صاحب نے کہا کہ ہمارا خیال تھا کہ جی اللہ اور اللہ کے رسول کا دین ہو, اور پھر اس میں تو اور زیادہ چاہت. یہ میں نے تو اپنے دیکھا کہ بیٹے کو دیکھا جیل کے اندر, اگر اس کو یہ نظریاتی سہارا نہ ہوتا جو کہ اس نے اپنا اڈاپٹ کیا اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا, تو یہ کوئی آسان کام ہوتا ہے کہ جیل میں آپ اپنے اتنے جوانی کے اندر ہوں اور آپ کے سامنے 10 سال کی جیل ہو, اور یہ بھی امکان ہے کہ یہ حکومت رہ جائے تو شاید کبھی نہ نکلنے دے. تو اور لیکن حکومت کوئی بھی سزا رہ نہیں سکتی. یہ تو ایک تبدیلی, تو جتنا اگر 5-7 سال بھی وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ہر ایک یہاں پہ مارشل لاؤں کی بھی ایکسپائری ڈیٹ ہے, سیلف لائف ہے, لیکن 5-7 سال بھی رہ جائے تو اگلے کوئی بندہ لائف کے بہت قیمتی ٹائم ہے. تو کرائسس یہ ہے جی. لیکن ایک چیز جو میں ایڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ جو شامی صاحب نے جیسے اشارہ کیا کہ جب کمیونزم جو ہے پوری طریقے سے ناکام ہو گیا 80s کے اندر, تو آپ کا میں نے یہ دیکھا یہ قبائلی علاقوں میں کہ آپ کا مین دشمن اگر مر جائے نا تو آپ بھی مر جاتے ہو. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی فلموں میں کہ سلطان راہی ختم ہو گیا تو مصطفیٰ قریشی بھی ساتھ ہی خرچ ہو گیا. بہت خوبصورت بات کی ہے. دشمن مر جائے تو آپ خود بھی مر جائے. خود بھی مر جائے, آپ کی وہ اسٹرگل ہی ختم ہو جاتا ہے. آپ کا اسٹرگل ختم ہو جاتا ہے, جس چیز کے لیے اسٹینڈ کر رہے ہیں آپ کچھ بھی نہیں. شامی صاحب بتا رہے ہیں لوگ سیاسی ہوتا آگے جی, کوئی نواز شریف کے ساتھ لگ گیا, کوئی بے نظیر کے ساتھ, کوئی عمران خان کے ساتھ. اب وہ کوئی کسی کو جھجک نہیں ہوتی کہ عمران خان صاحب کو بندہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو جائے, یا پیپلز پارٹی کا بندہ مسلم نون میں ہو جائے, جنون کا بندہ تحریک صاحب میں چلا جائے. اکنامک پروگرام ایک جیسے ہوگا سب کے, ہاں جی ٹھیک ہے نا. وہ پرائیویٹ وہ نیشنلائزیشن کا ختم ہو گیا. اب دیکھیں بھٹو صاحب نے جو نیشنلائز کر کے جو نقصان پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. جی آج تک مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. شامی صاحب بریک سے جب واپس آتے ہیں, میں بلال صاحب کیونکہ یہ پولیٹیکل جو سائنس ہے اور اس کی ریسرچ ہے اس میں اب چونکہ بات تھوڑی سی سیاسی اس طرف چل پڑی ہے, میں چاہوں گا کہ اب آپ عید پہ چلے جائیے گا. میں صرف ایک سوال اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بہت ضروری ہے یہ آج کی جنزی سے متعلق, اور جو اس وقت پولرائزیشن ہے, جو مائنس نظریہ ہے, یہ ہمیں کس طرف لے جا سکتی ہے, اس پہ بات کریں گے. لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.